Hello, everyone, and welcome back to the OCD podcast. So, this week we had Sir Naeem Akhtar on. He is one of the most knowledgeable people that me and Ashtar know of. And he also taught us in high school and was our career counselor. So, this was an amazing episode to record. We had a lot of fun recording it. I hope you guys maybe take away something because the amount of knowledge that Sir Naeem gave us in this episode and the advice that he gave us, it was amazing. I hope you guys enjoy listening. Without further ado, OCD. Assalamualaikum, sir. How are you doing? Assalamu alaikum. Wa- Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm fine. How are you, Rihan and Ashtar? Everything is okay on your side? Alhamdulillah, sir. And Alhamdulillah, everything's fine. sir, how has school been during this whole lockdown thing? How has it been for you? Alhamdulillah, Pisces was in fact before the COVID-19 has been associated with the Microsoft team, and everything was on alignment. And when on 8th of March, the lockdown was announced in Saudi Arabia, our senior classes within 3 days were online on Microsoft Team. And Nice. within 10 days, all classes from grade nursery to A2, that is the grade 12, year 12, all classes were online, alhamdulillah, on Microsoft Team. So, sir, how was it like Right. teaching online? Alhamdulillah, it was very good experience. It took about 1 week for the teachers to train and to come up that, you may say, for the online classes. There were some gadgets which were needed as well as some experience. But ultimately, when you start something, ultimately it may take 1 or 2 weeks to come down. And ultimately, at the end of the day, I think, Alhamdulillah, all teachers are well equipped and they are, you may say, aligned with this system, and classes are going very well, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nice. So, सर तो yeah. रियाद में प्रोजेक्टेड डेट क्या है कि कब खुलेंगी सारी इंस्टीट्यूशंस? इज देयर लाइक एनी डेट? देखिए अभी तक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, दैट इज ऑन 30th of August. They announced that for Right. 7 weeks the school will remain on virtual, that means online classes, and after 7 weeks they will decide that whether the school will be physical or not. But up till now we are expecting that till December, that is the first term, it will go online. It seemed to be not possible physical classes. Okay. So, sir, math की जब बात करते हैं, math is really hard to teach online. So, like, how did you go about teaching math online? Riyan, maths is mother of all sciences. Yes. It is not hard, not easy. It needs, you may say, interest, right? Okay. Okay. If you are interested in maths, it's very easy. Like Okay. if Ashtar is taking medicine, obviously for him the biology is very easy. For me, if you ask biology or chemistry or you may say worst subject for me, right? So it Yes. depends upon everybody's interest, right? Yes. But Yes. obviously, Definitely. when we're talking about teaching point of view, so being a math teacher, you know, it's teachers, you may say, way that how he engages class, how he engages students. That Yes. obviously it's a boring subject, seem to be very, you may say, not interesting, but it depends upon teacher that if he associates the mathematics to daily life and create an interest in the class, ultimately it will become very easy and the student take interest. You always both have been in my classes, and you know, Yes. I think, alhamdulillah, apart from some sort of, you may say, strictness, you people have never been bored in my period, is it? Never. Yes. That is very true. Ultimately, Definitely. being a math teacher, it's always, it depends upon the teacher that how he create interest in his class and keep the student engaged and busy. Okay. So, sir, how did you start teaching? Like, how did you get into teaching, and what made you want to be My a dear, teacher? I am proud to say this thing that I am a born teacher. I was in grade 3-4 when I was in, you may say, शौरी दौर में था, तो मुझसे पूछा जाता था कि what you want to be. मैं ग्रेड 3-4 में कहा करता था कि मुझे मैथमेटिक्स का टीचर बनना है. Oh, और शायद nice. उसमें मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद साहब का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था. यकीनी तौर पे मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगा मेरे अर्ली डेज की जो टीचर्स थी,
One of them was Ma'am Ghazala, another was Ma'am Zohra, both of mathematics teacher, and they, you may say, developed this interest in me. And from grade 3 and 4, I was determined to be a maths teacher. And MashaAllah. Alhamdulillah, I followed and I studied mathematics at all level, FSC, then BSc, AB Math, and then I did my master's in mathematics. Ultimately, this was my roadmap to come towards the mathematics. So I am born teacher, and I come in this profession by choice, not by push. Nice. Right. Okay. Sir, but why at school level? आपका दिल चाहता है कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाएं या do you find it more comfortable? अख्तर बेटा, मैंने लॉर्ड्स आइजैक यूनिवर्सिटी लाहौर में यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, राइट? Okay. मैंने रियाद में भी एक यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पढ़ाया, मैंने स्कूल भी पढ़ाया, मैंने कॉलेज भी पढ़ाया, ठीक है? मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ ग्रोइंग एज ऑफ 13, 14 to 18, 19. So with the experience of, because मैं जाहिर है सीनियर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है सऊदी अरेबिया में, जो प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी का एक बैच है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? फीमेल भी वहाँ थी, मेल भी थे, मैंने सेपरेटली उनको पढ़ाया. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी चॉइस मुझे मिली, जो मैं जहाँ कंफर्टेबल फील करता हूँ, वो मुझे ये एज ग्रुप था जिसको मैंने आप पहले डिफाइन किया कि 15 से लेके 18, 19 तक. दैट इज, यू मे से दैट 9, 10, A1, A2 मेरे लिए आइडियल रहा, और ये मेरे लिए मेरी मिजाज के मुताबिक जाहिर है कि मुझे कंफर्टेबल फील किया, और मैं जाहिर है अपने करियर को मैं इसी के अंदर कंटिन्यू किया हूँ. Okay. So, sir, but how did you end up coming to Riyadh? My best friend, Mr. Faisal Malik, dragged me over there. Nice. I was very, very much happy in, you may say, in Pakistan. I was doing a job in DPS Lahore, the Regional Public School and Intermediate College, Model Town, Lahore. I was teaching there O-level and FSC. Alhamdulillah, I was very much satisfied over there. And even at that time, I was writing the books as well of mathematics. Nice. Perhaps you know more than 10 books I have written in mathematics. And Mashallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, there are private schools over there. Although I have left Pakistan in 2004, but those books has now even been taught at different private schools, right? So Yes. I was very much satisfied over there. I was doing my job with, you may say, with complete satisfaction. But ultimately, Faisal Malik, you know that he was my class fellow, and ultimately when he joined Saudi Arabia, Riyadh, that is Spices, so he, not, you may say, dragged me, or he ordered me to apply, and ultimately Nice. I applied, and I was lucky enough that there were 27 candidates at that time in interview in Lahore, and there was only one seat, and Alhamdulillah, I qualified that one, and that is why Mashallah. I was dragged by Faisal Malik, and Alhamdulillah, I'm proud of him that he has given me this opportunity to come and do the job as an international teacher. Sir, आप अपनी life में at any point have you ever wanted to change your occupation, like at any point in your life? Not at all. मैंने अश्तर पहले बताया, ग्रेड 3 में शायद मुझे याद पड़ता है कि एक दफा एक विजिट, मैं जूनियर पब्लिक स्कूल भक्कर जो है वहाँ के स्कूल में पढ़ता था, भक्कर के, और आप ये कहिए कि वो आप यूं समझ लें कि लाहौर का जो एचीसन का मकाम है वो शायद भक्कर जैसे एक सबर्बन एरिया में उस स्कूल का मकाम था. तो वहां मुझे याद पड़ता है कि एक डेलीगेशन आया, दैट वाज स्कूल टिल ग्रेड 5. तो वहां एक डेलीगेशन था, और उन्होंने बच्चों से हाथ खड़े करवाए कि who want to be the pilot, who want to be the doctor, who want to be the engineer, and it was a gathering of more than, I think, 100 students, and they were standing at the stage, and at the end one gentleman asked anybody who want to be the teacher. So Rian and Ashtar, you may be surprised that I raised the hand only one, and I said I want to be a teacher. And the gentleman was very much surprised. I forget his name. He said, "Oh, you want to be the teacher?" Yes. Which subject? I asked. I want to be the mathematics teacher. Nice. So it's Nice. my, you may say, choice, and that is why from that day
till my last, you may say, qualification, I did it in mathematics. I was associated, and when I planned that I want to be a teacher, during that time I did a course of mathematics, teacher of high school level. That is, in Pakistan it is called BEd, Bachelor's of Education. Right. Along with my masters, I have done that course as well. So to be a teacher, I qualified accordingly, and ultimately I joined this profession. Okay. So, What a sir, story. क्या कहते हैं, how do you compare Riyadh, Saudi Arabia and Pakistan in terms of teaching and also generally? Yes, both. देखिए रेयान, इसमें एक बात तो तयशुदा है कि पाकिस्तान हमारा बिलव्ड होमलैंड है, Yes. राइट? Yes. वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे यानी जो आप कह लीजिए कि प्लस पॉइंट हैं। लेकिन ये मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि मैंने तकरीबन 9.5 ईयर पाकिस्तान में प्रोफेशनली टीच किया, लेकिन वहाँ शायद वो जो मैं लफ्ज टर्म यूज करूंगा कि शायद मैं घड़े का ढक्कन था। यानी whatever I was doing, just I was teaching to O level and FSC and nothing more I can do, because वहाँ पे रहते हुए आप इतना ज्यादा एक एंगेज हो जाते हैं, फैमिली लाइफ होती है, फ्रेंड्स होते हैं, बाकी आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक जो चीजें चलती हैं, वहाँ क्या है कि बंदा सिर्फ एक फिक्स हो जाता है कि इससे बाहर नहीं निकलना, राइट? लेकिन जब मुझे रियाद में आया हूँ, और मैंने आपसे कहा मैं अपनी विल से नहीं बल्कि अपने एक दोस्त के फोर्स करने पे यहाँ आया और मैंने ज्वाइन किया, बाय द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये मालूम हुआ कि इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज यहाँ एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थी। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि पाकिस्तान में मैं बहुत सारी चीजों से फेमिलियर नहीं था, मैं कंप्यूटर लिटरेट नहीं था, मैं कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारा काम नहीं कर सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाइसेस में जो एग्जाम डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम बना हुआ है, जिसे हम रिजल्ट जनरेटर कहते हैं, वो मैंने खुद से डिजाइन किया और खुद से बनाया, और ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने सऊदी अरब में रह के सीखी हैं। मेरी जाहिर है बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हुई, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मुझे सामना हुआ, मुझे सऊदीज को पढ़ाने का मौका मिला, पाकिस्तानीज को, इवन आई हैव टॉट इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये जो एक्सपोजर मुझे मिला, अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि ये अनमैचेबल था, जो शायद मैं पाकिस्तान में कभी भी हासिल नहीं कर सकता। फाइनेंशियली भी मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। इसके अलावा देखिए, यहाँ रहते हुए जब आप अच्छा अर्न करते हैं तो आपको मौका मिलता है कि आप आगे की तरफ भी सोचते हैं। यही वजह है कि मैं रियाद में रहते हुए नंबर ऑफ टाइम इंग्लैंड विजिट कर चुका हूँ, यूरोप के कंट्रीज देख चुका हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैंने विजिट की है, वहां मैंने कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अटेंड की हैं, और अल्टीमेटली दुबई में, बहरीन में, यहाँ मैंने एज ए स्टूडेंट काउंसलर डिफरेंट सिंपोजियम अटेंड किए हैं, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं, और मेरा जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा बड़ा है, जो यकीनन मैं अगर पाकिस्तान में होता तो शायद मैं इतना ज्यादा कुछ लर्न नहीं कर सकता था। मे बी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जो अल्लाह ताला ने रिस्क देना होता है उस पे वो तो मिल जाता है आपको, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो यकीनी तौर पे मुझे रियाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला, यकीनी तौर पे जो मेरे लिए एक मतलब एक मेरा जिसे कहते हैं एक सीवी में एडिड चीज है। Nice. So, sir, I'll talk about this. Like, this is a very you've also talked to our class about this, and it stuck with me because I also had like the same mindset. Basically, like, you know this, my father is also a businessman. So I've always had that mindset where I don't actually want to work for someone, but obviously I realize a person needs experience before he can do something on his own. But what do you think about the job mindset that a lot of people, especially students, have when they're like, I'll do this degree or isse mujhe zyada paise milenge, iski jobs behtar and stuff. Like, what do you think about that, and what are your own views on jobs and that? Yes, Rian, obviously I have always been in job, right? Yes. Honestly, I belong to a very middle class family, that is, you may say, where my father has just given me one wording that, my dear son, if you study you will survive, because he don't have a factory or he don't have a huge business that he can inherit me, right? So ultimately he told me at that time that whatever you have earned you have to do on your own steps. So I did it. But as a, you may say, right now, after serving more than 25 years in this field, right? So what I concluded, I will always, you people always remain in my classes, whenever student counseling session was there,
I always told you people one thing, that study for the sake of knowledge. Don't consider that this degree will give you something huge salary. This degree will give you, you may say, a very good job. Don't think about it. As आपको पता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि रिस्क जो है वो 75% जो है वो तिजारत में है, राइट? और बाकी जो 25% है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, वो आप कह लें बाकी चीजों में। अगर आप नॉलेज हासिल करते हैं और नॉलेज हासिल करने के बाद उसको एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, तो मेरे बच्चे, मैं ये समझता हूं कि अपना काम आपका बहुत मैटर करता है, ठीक? आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं किसी अदारे के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली क्या होता है कि वो, एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। राइट, टेक योर टाइम। कि पहली तारीख को मुझे एक व्हाट्सएप एक मैसेज आता है कि जी इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। तो अल्टीमेटली ये एक वो चीज है जिसको मैं लफ्ज यूज करूंगा कि शायद ज़हनी गुलामी है, राइट? मैं एक, जैसे आप लोग हैं अब इस फील्ड में हैं, अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, फाइनल मराहिल में हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप इल्म हासिल करें और उसके बाद आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप कीजिए कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर, you should seek a job, you should be a job provider. Yes, right? yes. बेशक पहले दिन आप एक वो कहते हैं बंदे से काम शुरू करें, एक वक्त आएगा जब आप उसको बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। Yes. याद रखिए कि आप जो भी हों, जहां भी हों, जिस जगह भी हों, अगर आप एक अदारे में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सीईओ ही हैं उस कंपनी के, लेकिन बहरहाल आप एक एम्प्लॉई हैं, आपका बॉस, आपका ओनर, आपकी जो कंपनी का हेड है, वो आपको उस वक्त तक यूज करेगा जब तक आप काम करेंगे। जिस दिन आपने थोड़ा सा भी 19-20 किया, उसके मिजाज के खिलाफ काम किया और उसके साथ आपने अलाइनमेंट नहीं हो सकी, वो 1 मिनट से पहले आपको आउट ऑफ द गेट कर देगा। हाँ जी। इट इज कॉमनली सेड कि मुझे वो एग्जैक्टली अदारा याद नहीं है, लाहौर में उसका ताल्लुक है, आई हैव रेड इट, कि एक कंपनी का बड़ा मैनेजर बाहर निकला और उसने देखा कि एक साइड पे समोसे लगाता है एक शख्स, उससे कहा कि ये समोसे बेचते हो? उसने कहा हाँ मैं समोसे बेचता हूँ। उसने कहा अपने बेटे को पढ़ाते क्यों नहीं हो? उसने कहा बुनियादी तौर पर उसे मैंने 8-10 क्लासें पढ़ाई हैं, अब वो मेरा काम संभालेगा। उसने कहा नहीं नहीं, आपका बेटा तरक्की नहीं कर सकेगा अगर वो पढ़ेगा नहीं। तो वो जो बुजुर्ग हैं, बाबा जी जो समोसे बेचते थे, तो उसने लफ्ज कहे, उसने कहा बेटा मैं अपने घर से समोसे फ्राई करके लाता था और यहाँ बेचा करता था, फिर एक वक्त आया मैंने यहाँ ठेला लगा ही फ्राई करना शुरू कर दिए। आज एक वक्त है कि मैं एक छोटी सी दुकान बना चुका हूँ और जहां मैंने 2 मुलाजिम रखे हुए हैं। अगर मेरा बेटा मेरे काम को ज्वाइन करेगा तो वो इसको आगे इनहांस करेगा और आगे लेके चलेगा। जबकि आप इस कंपनी में पता नहीं कहां से एमबीए करके, स्पेशलाइजेशन करके यहाँ आए हैं और आप आज अपने कंपनी के ओनर के मिजाज के खिलाफ एक बात करें, वो गेट से बाहर खड़ा कर देगा आपको। या आपका बेटा जो है, जब वो एजुकेशन हासिल करके आएगा, वो इस वजह से उसको जॉब नहीं मिलेगी कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट? उसको खुद से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं समोसे फ्राई करने से शुरू किया है, एक वक्त आएगा कि मैं इसको एक्सपैंड करूंगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरा बेटा मेरे बिजनेस को जिस दिन मैं यहाँ से स्किप होऊंगा, वो इसको इससे आगे लेके चलेगा। तो मेरे जो जॉब है वो बहरहाल आपको वक्ती तौर पे शायद आप ये कह लीजिए एक सेटिस्फेक्शन तो देती है, या वक्ती तौर पे पुरसाइश जिंदगी तो दे देती है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं है। आपका काम, अपना काम आप अगर किया हो और आपने उसमें बेस बनाई हुई हो, तो यकीनी तौर पे आपके लिए तो वो कहते हैं पूरी दुनिया एक होराइजन है, आप कहीं से कहीं निकल सकते हैं, राइट? वो क्या माइक्रो जो है अपना, आप कह ले एप्पल का जो ओनर है या ये फेसबुक का ओनर है, वो आज मल्टी मिलियनर है, ठीक है? या आप उसकी बात कर लीजिए, अपना माइक्रोसॉफ्ट का ओनर जो है बिल गेट्स जो है, वो बिलियनर है। उसके अंडर कितने ही एमबीएस या पीएचडीज या पता नहीं कौन कौन उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है? बट आप उसको देखिए कि जो बिजनेस प्रोवाइडर है वो बहुत मैटर करता है। जी जी, that is true. yes sir.
सर लेकिन सर ये भी तो है ना कि आपके पास एक लेवल की एजुकेशन है कि अगर बेशक वो आपको बाहर खड़ा कर दें, आपको उनके ऊपर रिलाय ना करना है, आपकी डिमांड इतनी हो कि आपको कोई भी बंदा हायर कर ले, मतलब जितने भी बिजनेस होने वो क्या है कि इस बंदे की डिमांड है, हमें ये चाहिए। अशतर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। याद रखिएगा दुनिया भर में जो टॉपर्स हैं उनकी कदर होती है, वो हर जगह अपनी जगह बना लेते हैं। बट आप मुझे बताइए कि आप किसी भी क्यू में खड़े हैं, बहरहाल कोई एक तो टॉपर होगा, राइट? जी किसी दूसरे को दूसरे डेफिनेटली। नंबर पे आना है। यकीनी तौर जी पे आपका पॉइंट ठीक है। मुझे ये बताइए जो एक्सपर्ट्स हैं वो कितने हैं जिनको ओन किया जाता है, राइट? देखिए ना, एक काउंटलेस। आपकी क्लास थी, अगर 20 बच्चे थे उसमें जाहिर है कि टॉप 3 या 4 एक कैलिबर के थे, उसके बाद अगले 3-4 एक तरह के थे। अब मुझे ये बताइए कि उसमें से जो एक टॉपर है उसकी तो अपॉर्चुनिटी या उसकी तो डिमांड मार्केट में मौजूद है, लेकिन एक जो मीडियोकर है वो बेचारा तो ऑलवेज जॉब सीकिंग के लिए परेशान है। उसको एक कंपनी से जब जॉब उसकी खत्म होती है, आप ये देखिए ना कि मैं एक अदारे से वाबस्ता हूँ, पाइसिस से मैं ऑलमोस्ट 17 ईयर से वाबस्ता हूँ। अगर वन आर द अदर वे मुझे आज पाइसेस से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के बाहर फेंक दे, खड़ा कर दे, मुझे ये बताइए जो मैंने वहां एक नाम अर्न किया हुआ है, जो मैंने हार्ड वर्क किया हुआ है, अपना यूथ दिया हुआ है, एट द एज ऑफ 50 मैं उस पोटेंशियल से नई जगह जाके काम नहीं कर सकता। हो सकता है मुझे 2 अदारे कबूल तो कर लेंगे, 2 अदारे मुझे जॉब तो दे देंगे, लेकिन याद रखिएगा कि वो मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकेंगे जहां मेरी एसोसिएशन लॉन्ग थी, राइट? लेकिन अगर मैं कंपनी का ओनर होता या मेरा अपना एक छोटा सा इदारा होता, अकेडमी होती, कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट होता, तो मैं उसका ओनर हूं, फॉर लाइफ लॉन्ग ओनर हूं। वहां मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करूंगा। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। टॉपर यानी हमेशा आपके लिए, अगर आप नागुज़ीर हैं, यकीनी तौर पे होता है ऐसे कि बहुत सारे लोग नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में अगर मैं बड़ा नाम लूं, असद उमर वन ऑफ दोज पर्सन है कि जो हाईएस्ट सैलरीड पर्सन रहा है पाकिस्तान में। उसका भाई है जुबैर उमर, ही हैज बीन एन एक्सीलेंट वन। अगर मैं उधर दूसरी तरफ चला जाऊं तो और इस तरह से वो क्या नाम है, उमर सैफ हैं, और इस तरह से चंद एक्सपर्ट्स हैं जिनकी डिमांड्स हमेशा रहती है। लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखिए कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स में से हाउ मेनी पीपल आर देयर हु वांट टू बी और हु आर एज अ यू में से नागुज़ीर हैं, जो यानी जिनको आप ये नहीं कह सकते इनके बगैर गुजारा नहीं चल सकता। एक्स वाई जी जो काफी सारे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। जी बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। या राइट सर, ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड है मेडिकल से। सर मैंने ये एक स्टूडेंट का सवाल था और ये मैंने भी आपसे शेयर करना था क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये होगा क्या। अब फर्ज करें कुछ बच्चों ने ऑप्ट नहीं किया था प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के लिए, उन्होंने ऑप्ट किया था कि हम अक्टूबर बच्चे हैं तो क्या कहते हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो मेडिकल रेगुलेशंस आई हैं 2020 की, ये पाकिस्तान की पीएमडीसी की, तो वो कह रहे हैं कि हम नवंबर तक हम मेरिट लिस्ट सब पब्लिश कर देंगे, तो वो बच्चे अब किधर जाएंगे? तो यकीनी तौर पे देखें अशतर, बात ये है कि जिन लोगों ने भी प्रेडिक्टेड ग्रेड ऑप्ट नहीं किए और उन्होंने एग्जाम को ऑप्ट किया अक्टूबर नवंबर को, उन्हें मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए था कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन अक्टूबर नवंबर, राइट? और उसका रिजल्ट अनाउंस होगा 19 ऑफ जनवरी को, एंड दे विल मिस द ट्रेन फॉर ईयर 2020-21, राइट? वो इस साल की ट्रेन श्योर शॉट मिस करने वाले थे, बिकॉज आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में साल में नॉर्मली एक दफा दाखला होता है, राइट? और वो फॉल सेशन में होता है, सितंबर आइडियल टाइम होता है, थोड़ी सी डिले के साथ अक्टूबर या मिड ऑफ नवंबर तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो एक बच्चा जिसने जून 2020 के लिए ऑप्ट किया और उसके सामने दो ऑप्शन थे कि या तो वो प्रेडिक्टेड ग्रेड पे चला जाए या वो अपने मसल्स शो करे और वो एग्जामिनेशन के लिए चला जाए। तो अगर एक बच्चे ने अक्टूबर ऑप्ट किया तो उसके जहन में ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए थी कि जनाब मैं अगर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे रहा हूं तो मेरा रिजल्ट तो अबाउट 19 जनवरी को डिक्लेयर होगा। इट मीन कि मैं वो इस साल का जो सेशन है वो मिस कर चुका हूँ एंड आई हैव टू ऑप्ट अ गैप ईयर, और वो ऑब्वियस था। okay, sir, when you talk about the A level grading thing, तो इस दफा when the grades came out, I don't know, थोड़ी देर पहले आए थे, तो क्या मसले आए थे to you, especially to you, आपको आए होंगे?
कैम्ब्रिज देखें, असल में मैं समझता हूं कि कैम्ब्रिज जो है इसको वक्त से पहले जान नहीं सका। उन्होंने इसको बहुत लाइट लिया, राइट। यस उन्होंने जो प्रोसीजर बताया उसके मुताबिक उन्होंने पहली दो ऑप्शन दी कि आप प्रेडिक्टेड डेट ऑप्ट कर लें या मई जून के अंदर अपना अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे दें। फिर उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। उन रूल्स एंड रेगुलेशन में उन्होंने क्या किया कि नंबर वन उन्होंने कहा जी टीचर्स अपने पैरामीटर्स के तहत उन बच्चों को ग्रेड प्रिडिक्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने स्कूल्स को जो एडवाइस किया वो क्या था, उन्होंने ये कहा कि हम स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर ऑप्ट करेंगे। अब स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर क्या था रेयान, ये था कि पाइसेस में से 100 स्टूडेंट अगर अपीयर होते हैं तो हमारी एक एवरेज है कि ओ लेवल में हमारे 52 टू 54 बच्चे ए स्टार लेते थे। नेक्स्ट 20 टू 22% यानी 72% के लगभग हमारी वेटेज थी जो बच्चे बी या अबव बी लेते थे, और 92% हमारा एग्रीगेट था लास्ट 5 ईयर का जो बच्चे सी और अबव लेते थे। ये एक एवरेज की बात है, ठीक है। अब जब कैम्ब्रिज ने ये वो किया, उन्होंने इसी स्टैंडर्डाइजेशन के तहत यानी टीचर से हम लोगों से उन्होंने ग्रेड मांगे, और ग्रेड के साथ साथ उन्होंने रैंक मांग ली है कि मसलन फर्ज कीजिए एक सेक्शन में 20 बच्चे हैं, मैंने फर्ज कीजिए 8 बच्चों को ए स्टार दे दिया। ए स्टार में मैंने फिर ए स्टार 1, ए स्टार 2, ए स्टार 3, ए स्टार 4 मैंने इस तरह अवार्ड कर दिया। अब जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जी पाइसेस जो है वो तो डिजर्व करता है कि इसको 6 ए स्टार दिए जाएं, राइट। उन्होंने मेरे पहले 6 स्टूडेंट जिनको मैं ए स्टार दे चुका था उनको ए स्टार दे दिया। जो नंबर 7 और नंबर 8 पे ए स्टार वाले थे उनको उन्होंने पुश कर दिया ए में। सिमिलरली जो ए वाले थे वो पुश होके बी में चले गए, और नतीजा क्या हुआ कि उसके अंदर ये वाले मसाइल जब आए कि जहां बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको प्रेडिक्टेड डेट के मुताबिक नहीं मिले, और दुनिया भर से जो प्रेशर बिल्ट हुआ वो जाहिर है कैम्ब्रिज उसको सस्टेन नहीं कर सका, बिकॉज वो इलॉजिकल उन्होंने काम किया था। क्योंकि देखिए स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि आपको भी मालूम है कि आपने मुख्तलिफ बैचेस देखे पाइसेस में, क्या है कि एक बैच होता था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता था। मुझे याद पड़ता है वासिफ सफदर वगैरह का जो बैच है, याद है आपको, वो वन ऑफ द बेस्ट बैच था जिसमें मुझे याद पड़ता है कि 15 में से 14 बच्चों का ए आया था, एक बच्चे ने बी लिया था। लेकिन उसके मुकाबले में बाकी सालों में ऐसा भी आए कि जहां 15 में से शायद 6 या 7 बच्चों के आए। हर साल का बैच डिफरेंट होता है, राइट। हर साल के बच्चों की कैपेबिलिटीज को आप ऑन एवरेज नहीं अवॉर्ड कर सकते। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब उन्होंने एवरेज पे किया तो वहां बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। अब अगर मैं ए लेवल में आ जाऊं और मैं पाइसेस की बात करूं तो यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया। पाइसेस ने 2 साल पहले कैम्ब्रिज स्टार्ट किया, राइट। आप दोनों माशाल्लाह एडेक्सल करके गए हैं। आप लोगों के बैच के बाद कैम्ब्रिज ने एडेक्सल को खैराबाद कहा, मैथमेटिक्स हम एडेक्सल कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड आईटी को हम क्या कर रहे हैं कैम्ब्रिज से फॉलो कर रहे हैं। अब जब उन्होंने हमारे ग्रेडिंग को ए लेवल की ग्रेडिंग को जब ऑप्ट किया तो उनके पास हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड ही नहीं था, बिकॉज हमारा पहला बैच था जो A2 में फारिग हो रहा था। अब उन्हें चाहिए तो ये था जो मेरे नुक्ता नजर से कि हमारे बच्चों ने जो कुछ एएस में अर्न किया था उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देते। उन्होंने इसको करने की बजाय क्या किया, उन्होंने ग्लोबल जो एवरेज थी ग्रेड्स की वो उन्होंने दे दी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि मैं हमारे स्कूल में माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे थे जिनके स्टेट एज थे एएस में। उनमें से 11 बच्चे हमारे ऐसे थे, 6 गर्ल्स और 5 बॉयज, जिनके 3 स्टेट एज थे एएस में, लेकिन वो उस स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से बीसीडीज में चले गए। जाहिर है ये चीज पेरेंट्स के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल थी। जाहिर है इब्तदाई दिनों में जब रिजल्ट आया विद इन 1-2 डेज तो पेरेंट्स की शायद ये सपोजिशन थी कि स्कूल ने इनके ग्रेड बीसीडीज दे के भेजे हैं, जो जबकि ऐसा नहीं था। जाहिर है जब प्रेशर बिल्ट हुआ हम लोगों ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया। इस दफा चूंकि कैम्ब्रिज ने इंडिविजुअल अपील का राइट नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट को ये राइट दिया था कि वो प्रेडिक्टेड ग्रेड के खिलाफ यानी जो भी उनका ग्रेड आया है उसके खिलाफ वो अपील करेंगे। हमने यानी स्कूल की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया, अपील हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग तैयार की, लेकिन मीनवाइल ज़ाहिर है पूरी दुनिया से प्रेशर बिल्ट हुआ और उसमें कैम्ब्रिज ने वो जो चीज थी उसको विदड्रॉ किया विद इन 1 वीक। यानी 11th को रिजल्ट आया और 18th को उन्होंने विदड्रॉ कर लिया, और फिर नतीजा क्या हुआ कि जो उन्होंने स्कूल की तरफ से प्रेडिक्टेड ग्रेड थे वो एज
एज इट इज बच्चों को अवार्ड कर दिए गए। नतीजा क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बच्चे जो हैं उनको उनका राइट मिला। मे भी 2-3-4 बच्चे होंगे गर्ल्स और बॉयज A2 में जो शायद सेटिस्फाई ना हो कि टीचर ने उनको उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं दिए, लेकिन अल्टीमेटली ये बात तयशुदा थी कि 99.99% कम अज कम वो ग्रेड था जो बच्चों ने AS में अर्न किया हुआ था। कुछ बच्चे थे जिनको जाहिर है हमने कंपोनेंट मार्क्स देख के उनको हाई रैंक कर दिया था कि अगर A लिया हुआ है और फर्ज कीजिए उस बच्चे का A 88 या 89 पे था कंपोनेंट मार्क्स में, हमने उसको A स्टार में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जिस बच्चे का A 81, 80 या 82 पे था तो स्कूल ने ऑनेस्टली उसके ऊपर उस बच्चे को A में ही रखा था। तो जाहिर है अब मेरा ख्याल है कि अगर मैं कहूं कि हमारे जो A2 का आउटगोइंग बैच है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 99% सेटिस्फैक्टरी रेट है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह 343 कैंडिडेट्स हमारे थे ओ लेवल और ए लेवल के अंदर। उनमें से जाहिर है कुछ लोगों को तो आपको पता है कि हम यकीनी तौर पे सेटिस्फाई नहीं कर सकते या कहीं कोई थोड़ी बहुत कोताही भी हुई होगी या प्लस माइनस भी हुआ होगा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अब अल्हम्दुलिल्लाह 99% स्टूडेंट जो हैं वो अपने ग्रेड जो उन्होंने अर्न किए हैं, जो उनको अब कैम्ब्रिज ने अवार्ड किए हैं आफ्टर रिव्यू, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है। ओके, तो सर आपने इतने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है एंड लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा बैचेस गए हैं। डू यू हैव द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट? एंड आई एम नॉट सेइंग यू डू, इफ यू डोंट तो फिर जस्ट टेल मी यू डोंट। प्रियाम देखिए, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, आपको पता है ये अश्तर भी मेरी क्लास में रहा है, अगर आपको याद हो कि मैं शायद वो एक रियाल दिया करता था जो टेस्ट में टॉप करता था, याद है ना? और उसमें क्या था कि वो एक मतलब यानी उसको क्या थे कि 1 रियाल देने का मकसद जो होता था एक्नॉलेजमेंट होती थी। और अगर आपको याद हो कि कुछ बच्चे ऐसे जो बेचारे कभी भी मतलब वो कह लें कि 20 मार्क के टेस्ट में अगर 10 या 9 या 8 मार्क ले रहे होते थे, अगर उनमें से कोई बच्चा सरप्राइजिंगली 15 या 16 ले जाता था तो आपको याद होगा मैं उस पर्टिकुलर बच्चे को भी देता था, राइट? आइडियल स्टूडेंट यकीनी तौर पे आप लोग एग्री करते हैं और आप लोगों के सामने ये सारा कुछ होता रहा। याद रखिएगा कि देखिए बीइंग टीचर मेरे लिए एक बॉटम लाइन स्टूडेंट भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितना एक टॉपर है। टीचर का रोल क्या है कि वो बच्चे के पोटेंशियल को बाहर लाए, राइट? अगर एक सपोज 50% एग्रीगेट का एक बच्चा है, टीचर अगर उसको 50 से 60 पे लाता है तो दिस इज हिज अचीवमेंट। तो आपने अगर आइडियल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरी क्लास के टॉपर ही मेरे आइडियल थे। मैं अगर ये कहूं कि मेरी क्लास के बॉटम लाइन स्टूडेंट भी मेरे मतलब बहुत करीब रहे हैं। रियान गवाही देगा, इनकी क्लास में अब्दुल रहमान इकबाल जो है डेप्टी हेड बॉय बनाया गया। इज इट क्लियर? दैट इज द टिपिकल एग्जांपल कि ही इन एकेडमिक ही वाज नॉट ओनली एक्सीलेंट बट रेस्ट he was very submissive, very obedient and very committed. Whatever the assignment, whatever the task he was given, he did it. और यकीन कीजिए कि जब वो पैनल बैठा था and I was a member of that one, कि जब हेड बॉय की सिलेक्शन की बारी थी तो बहुत सारे डेप्टी हेड बॉय की जब बहुत सारे क्वेश्चन आए तो वो एक पूरे पैनल की ये चीज थी कि हम एकेडमिक्स की एक्सेलेंस को जरूर वेटेज देंगे, लेकिन हम बच्चे की पर्सनालिटी को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे, उसकी अदारे के साथ वाबस्तगी, उसकी कमिटमेंट और बाकी तमाम चीजें जो वो अदारे के लिए करता है हम उसको रेट करेंगे। तो मेरे नजदीक आइडियल स्टूडेंट कभी भी टॉपर क्लास का नहीं रहा, राइट? मेरे लिए हमेशा वो बच्चा जो जिस स्टेज से है, जिस लेवल पे है, जिस जगह वो खड़ा है, वो वहां से अगर इंप्रूव करके आगे आ रहा है, मेरे लिए वो बच्चा बहुत ही आइडियल होता है। और यकीनी तौर पे रियान जैसे आप यहाँ थे मेरे पास, मैं हमेशा आपको इनकरेज भी करता था, लेकिन साथ आप हमेशा जब भी कोई आइडिया लेके आते थे तो मैं आपको हमेशा ये कहता था कि मनी मेकिंग वाले आइडिया से बाहर निकलो। इज इट और नॉट? हमेशा यही कहता था। और अगली चीज है कंपीट करो और अपनी एक्सेलेंस जो है उसको प्रेजेंट करो। आपको जाहिर है स्टेज पे मौके भी मिलते थे, कुछ मौके मैंने खुद जाती तौर पे दिए, आप जानते हैं ना? जी सर। अब ये होता है कि देखें आपने अपनी एक्सपर्टीज से अपनी चीजों को डेवलप करवाना होता है। एज ए एकेडमिकली आई डोंट वांट टू से कि आप बहुत बुरे स्टूडेंट थे, यू वर अबाउट लिटिल बिट अबव एवरेज स्टूडेंट, बट ऑब्वियसली आपकी क्लास में टॉपर्स थे। लेकिन आप मुझे बताइए जब कोई भी फंक्शन होता था
तो स्टेज पे होस्ट करने के लिए आपकी क्वालिटीज की बिना पे आपको बुलाया जाता था ना। यानी क्लास के टीचर को तो नहीं कहते थे कि बेटा कम फॉरवर्ड एंड डू द today's function you may say hosting, not at all, right? Similarly अश्तर जो है ये खुद डिबेटर रहा है, इसने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। अगेन मैं ये कहूंगा इनकी क्लास में भी टॉपर थे, लेकिन जब डिबेट्स की बारी आती थी, किसी हाउस कंपटीशन की बारी आती थी, तो यू पीपल कम फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट एक मुकम्मल पैकेज है जहां आपकी पर्सनैलिटी है, आपका करेक्टर है, आपकी एजुकेशन है, आपकी एक्सपर्टीज है, और हर बच्चे में, हर क्लास के हर स्टूडेंट में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। और ये टीचर्स का रोल होता है कि उस बच्चे को वो वहां से हाईलाइट करवाएं और उसकी उस राइट को वहां पे दिलवाते हुए आगे लेके चलें। मुझे एक बड़ा यानी वो मैं मतलब एक यानी जिसे कहते हैं मैं कोई प्लेजेंट इंसिडेंट नहीं समझता। आई रिमेम्बर अश्तर और मेरी एक डिबेट हुई फेयरवेल पार्टी पे, रॉन्ग थिंग, राइट? देखिए एक पैनल होता है, एक तरीका होता है कि मेरे लिए उमैर मोहसिन उतना ही मोहतरम है जितना रियान कुरैशी या जितना अश्तर, लेकिन स्कूल का एक प्रिंसिपल है, एक चीज बता दी गई कि the whosoever is the part of Pisces will be able to join the party, right? Is it clear? मैं being teacher, being father, मेरे लिए उमैर मोहसिन बहुत मोहतरम है, लेकिन जब मैं एक ऑर्गेनाइजर हूं, एक पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, अगर मैं एक आउटसाइडर को इजाजत दूंगा तो मैं उससे एक हफ्ता पहले जो 12-14 दूसरे बच्चों को रिफ्यूज कर चुका हूं, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि पार्टी के स्पॉट डे पे मैं चंद स्टूडेंट, चाहे वो मेरे कितने ही करीब क्यों ना हो, उनके साथ ब्लैकमेल हूं। मैं आमतौर पे ये कहता हूं कि आई एम अ टीचर, एज अ टीचर आई एम फादर एंड आई डोंट अलाउ एनी स्टूडेंट टू बिकम माय फादर। मुझे लफ्ज़ याद है। Remember, I have वो मुझे सुना रहा था यही लफ्ज़। हाँ जी। My dear, it is crystal clear। और मैंने 25 ईयर से ज्यादा मेरी सर्विसेज हो गई हैं। मैं स्टूडेंट को हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ, स्टूडेंट को हमेशा फैसिलिटेट करता हूँ, जो उनका राइट होता है उससे ज्यादा राइट दिलवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऑन अदर हैंड एज अ फादर आई डोंट अलाउ एनीबॉडी कि वो मेरे ऊपर ओवर रूल करे, राइट? तो ये चीज है। देखिए उस वक्त जो हमारी डिबेट हुई थी वो एक ऑर्गेनाइजर, एक टीचर और एक स्टूडेंट की थी, और उसमें टू द प्रिंसिपल। और आप ये देखिए कि कभी भी अगर उस एक्सचेंज ऑफ वर्डिंग के बाद देखते आप कितनी दफा मेरे पास आए, रेफरेंस लेटर के लिए आए, कभी आपने मेरे माथे पे शिकन देखा, कभी आपने ये फील किया कि मिस्टर नईम ने मेरी इस बात को, या उस दिन जो मैंने सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट किया था या सॉर्ट ऑफ मैंने अगेंस्ट द प्रिंसिपल उसकी मैंने डिबेट की थी, क्या कभी मिस्टर नईम ने उसको ध्यान में रखा? नॉट एट ऑल। यही मेरा रोल है बेटा कि मैंने आपकी तरबियत भी करनी है, मैंने आपकी चीजें सिखानी भी हैं कि जिंदगी में दोस्ती सारा कुछ नहीं होती, असूल भी कुछ होते हैं, राइट? तो उस दिन अगर देखिए मैं उस दिन अगर एक उमैर मोहसिन को इजाजत दे देता पार्टी अटेंड करने की, तो मुझे ये बताइए, मैंने उस दिन भी नाम लिए थे, 13 या 14 स्टूडेंट थे जो एक साल पहले जा चुके थे एंड दे वांट टू जॉइन अस, इवन दे वर रेडी टू पे, बट सिंस इंस्टीट्यूट ने एक पॉलिसी बनाई कि नोबडी कैन अटेंड द पार्टी हु इज नॉट पार्ट ऑफ द स्कूल, सो यू पीपल वर नॉट अलाउड। इज इट और नॉट? यस सर, इट इज। मैं आपको बताता हूं, देखें क्लास में सम टाइम जाहिर है रियान सामने बैठा है, छुट्टियां करने में मास्टर था, राइट? नतीजा क्या होता था? लेट आए, डांटा, ठीक? लेकिन अगली बात क्या होती थी? अगली बात क्या होती थी कि नेक्स्ट क्लास में मुझे पता, मैं उस चीज को अपनी मेमोरी से वॉश आउट कर देता था कि इस बच्चे को मैंने एक पीरियड पहले क्या कहा था। इज इट और नॉट? तो बीइंग टीचर, याद रखिएगा, हम जैसे पेरेंट्स होते हैं, हम भी पेरेंट्स हैं। जैसे आप डांट पड़ती है, अब्बा से डांट पड़ती है, तो क्या वो अनमाइटी शाम तक बरकरार रहती है? वो दुश्मनी या वो जो हार्ट वर्ड या बिटर थिंग्स, नॉट एट ऑल। शाम को वही अम्मा माथा चूम रही होती हैं, वही अब्बा आप पे निछावर हो रहे होते हैं। तो बीइंग टीचर बेटा, हम भी वही रोल अपनाते हैं, हम भी उसी तरह से करते हैं। और आप ये देखते हैं कि हम मतलब कभी भी नेक्स्ट डे इस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, ठीक? अगले दिन एक नया दिन होता है और वही बच्चा मेरे लिए उतना ही मोहतरम और उतना ही रिस्पेक्टफुल होता है जितना बाकी क्लास होती है। आई एग्री सर। सब बस वो थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया था क्योंकि वो दोनों उदास थे। मैंने आपसे कहा ना, आई नेवर यानी कीप इट इन माय माइंड, बट द थिंग इज
आपको रियलाइज ये करा रहा हूँ कि अगले दिन आप मेरे पास आए थे तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपने माथे पे शिकन रखी कि कल मेरे और आपके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट भी था। इज इट और नॉट? जी यही जी चीज जी मैं आप लोगों से तवक्को करता हूँ कि बेटा जिंदगी में आप माशाल्लाह प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, याद रखिएगा बहुत सारे नशेबो फराज जिंदगी में ऐसे आएंगे जहां बहुत सारी चीजें आपको महसूस होगा आपकी दिल के अगेंस्ट हैं। अगर आपने उसको अपने जहन में रख के नेगेटिविटी डेवलप की तो याद रखिएगा आप अपने आप को खराब करेंगे। हाँ जी। असल जी काम क्या है? असल काम क्या है कि वो एट दैट मोमेंट जो कुछ हुआ, फिनिश इट। नेक्स्ट मोमेंट स्टार्ट विद जीरो एंड यू विल अर्न अ लॉट, और रिस्पेक्ट भी मिलती है। आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूं तो इसीलिए है ना कि यू कंसिडर मी सम रिस्पेक्टेबल। यस अगर आपकी वो अनमाइटीज मैं कंटिन्यू किया होता, मैं रिफ्लेक्ट करता अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में या अपने तरीकेकार में, तो अल्टीमेटली आज मैं आपके सामने बैठ के आपके साथ एक इजी डिस्कशन या गुफ्तगू या ये एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू जो है वो मैं ना दे रहा होता। जी सर, डेफिनेटली डेफिनेटली सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आप अपनी लाइफ ऑफ टीचिंग में बताएं कि कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस था जो आपको सबसे ज्यादा सॉवर लगा है, जो सबसे ज्यादा बुरा लगा है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ या देखो अस्टर, मैं वही बात करूंगा, बहुत सारे लम्हे आए, बहुत सारे जिंदगी 25 साल से ज्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 26 ईयर ऑफ एकेडमिक ईयर में मेरा स्टार्ट हो गया एजुकेशन में। बहुत सारे लम्हे आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मसाइल भी बने, बहुत सारे पेरेंट्स के गलत रवैये से हर्ट भी हुआ। बट चीज क्या है, एज ए प्रोफेशनल नेक्स्ट मूवमेंट मैं उस चीज को भूल चुका, राइट? और यकीन की ये वही चीज है कि जब मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं इस पेरेंट या इस बच्चे के बारे में नेगेटिविटी रखूंगा या इसके वालिद के इस फिक्रे की बुनियाद पे मैं इसके बेटे के साथ कोई रिवेंज रखूंगा, तो याद रखिएगा मैं खुद तड़पता फिरूंगा। ठीक, जब मैं कोई इनजस्टिस करूंगा तो अल्टीमेटली क्या है कि मुझे खुद भी कॉन्शियसनेस में मेरा जमीर जो है मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। ठीक है ना? तो बात यह है कि जिंदगी में बहुत सारे लम्हे आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जहां हर्ट भी होता है बंदा, बट प्रोफेशनलिज्म ये है कि यू हैव टू ओवरकम। और नतीजा ये होता है कि जैसे मैं और आप आज बैठे हुए हैं, और अगर मैं उस सीन को रिपीट करूं तो वो शायद अगर मैं या आप अपने जहन में रखते और मेरा एटीट्यूड आपके साथ उस तरह का ना होता तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। Is it? आपके वालिद के साथ अश्तर मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, अक्सर और बेशतर व्हाट्सएप पे एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होते हैं। आपके जो एडमिशन का प्रोसेस था, बहुत सारी चीजें हमने शेयर की, हमने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया, कुछ चीजें उन्होंने मुझे बताई, कुछ मैंने उन्हें बताई। तो ये वो चीजें हैं कि जो जिंदगी के साथ साथ चलती हैं। और हमारे जिंदगी में मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कामयाबी है ही इस चीज का नाम कि आप अगर कोई गलती, कोई यानी मैं गलती से लफ्ज अगला चला जाता हूं, मैं कहता हूं मस्ती, क्या कि गलती को रिपीट करना मस्ती होता है, गलती से सीख लेना आपकी एक्नॉलेजमेंट और आपकी ग्रेटनेस होती है, राइट? जब आप मस्ती करेंगे फिर आप गलत होंगे। जो बंदा काम करता है उससे गलती होती है, और अगर आप उस गलती से लर्न कर लें और आगे की तरफ सोचें तो यू आर सक्सेसफुल पर्सन। बट अगर आप उस गलती को रिपीट करेंगे तो जाहिर है कि फिर आप नाकाबिले इस्लाह की तरफ होने की तरफ जा रहे हैं, फिर बहुत सारी चीजें आप कर नहीं सकते। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ऑनर की बात है कि 1995-96 के सेशन से मैंने एकेडमिक कैरियर अपना स्टार्ट किया टीचिंग का। मेरे उस वक्त के स्टूडेंट आज भी मेरे साथ राब्ते में है, जहां कहीं दुनिया में मुलाकात होती है, जहां कहीं ये जो सोशल मीडिया के थ्रू जाहिर है एक नेटवर्किंग ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उनके साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन है, राइट? माशाल्लाह। अगर हम इन चीजों को ओवरकम करेंगे तो मेरी अपनी भी जिंदगी आसान होगी और मैं रिस्पेक्ट भी ज्यादा अर्न करूंगा, और मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे लिए ज्यादा दुआएं देंगे मुझे। Yes sir, sir I've seen कि when you अगर आप किसी को मतलब अगर आपका किसी के साथ झगड़ा या किसी के साथ कभी आपका कोई बैड टर्म्स के अंदर कुछ होए, अगर आप उसके साथ अगर आप उसको अपने दिमाग में रख रहे हैं, आप लिटरली उसको रेंट फ्री अपने दिमाग में रख रहे हैं, उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा, आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं by keeping him in your mind। 100% एग्री। यही चीज है कि जो जाहिर का सबब बनती है। हाँ जी।
Well, sir, ये है कि आपने हमें बड़ा बताया था कि you have hobbies such as journaling. आपने कहा था आपने I don't remember how many years, लेकिन आप हर रात अपने डायरी के अंदर कुछ लिखते हैं before sleeping every day, no matter what. तो आप मुझे बताएं इस तरह की और hobbies आपके पास हैं और like what are they if you do? देखें रियान, एक बात तो ये है कि मैं आई बिलीव मे बी ग्रेड 6 में हूँगा जब से मैंने डायरी लिखना शुरू की। जाहिर है मेरी वन ऑफ द टीचर जो थी उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था और उन्होंने कहा था कि रात को सोने से पहले चाहे दिन के 2 या 3 सेंटेंस ही लिखा करो उस दिन के बारे में, खास चीजों के वो लिखा करें। मैं ग्रेड 6 के से मैंने अपना डायरी लिखना शुरू की और मेरा ख्याल है कि मोर देन अगर मैं रफली कहूँ तो 35 इयर्स के लगभग डायरीज का रिकॉर्ड मेरे पास है। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे पुराने कुलीग्स, उन्होंने कोई चीज अगर पूछनी होती है कि फलां काम कब हुआ था, आप यकीन कीजिए वो मुझे फोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि नईम यार डायरी देख के बता ये वाला वाकया कब हुआ था, बिकॉज दे नो कि मेरे पास उनका रिकॉर्ड लिखा हो, चाहे वो एक सेंटेंस होगा कि मसलन फर्ज कीजिए जी आज फलां साहब ने मेरे साथ ये काम किया या आज ये नया काम हुआ, यानी ये वो एक ब्रीफ चीज थी जो मैं डायरी लिखता था। और यकीनी तौर पे जो मेरे लिए एक एसेट है जो शायद मैं रिटायर्ड लाइफ के बाद अगर उन डायरीज को बैठ के पढ़ने भी बैठूं तो मेरा ख्याल है बाकी मानदा जिंदगी में बड़े आराम से से गुजारूं। दूसरी चीज, पढ़ना कभी भी ना छोड़े। आपका जो इंटरेस्ट है, खा वो लिटरेचर है, खा वो साइंस है, खा वो मैथमेटिक्स है, आप कोशिश करें दिन में चाहे 5 मिनट के लिए कुछ जरूर पढ़ें, राइट। और मेरी एक हैबिट है कि पहले एक फिजिकल किताब की शक्ल में पढ़ते थे, लेकिन आजकल चूंकि हाथ में हर एक के गैजेट मौजूद है तो कुछ ना कुछ कम से कम रात को सोने से पहले यानी कुछ ना कुछ पढ़ के सोना है, राइट। ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हैं। और खास तौर पे जो यंग स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो अंडर यू में से आईजीज वगैरह के लेवल के हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी लैंग्वेज स्किल डेवलप होगी अगर आप रात को सोने से पहले 4 से 5 सेंटेंसेस अपनी लैंग्वेज उर्दू में या इंग्लिश में जरूर लिखें। नतीजा क्या होगा कि हर रोज एक नया सेंटेंस लिखते हुए कोई नया लफ्ज सीखने को मिलेगा और एक नई बात शायद आप लिख पाएंगे। और जब आपने ये कंपोज होंगे कि मैंने लिखना है, तो दिन भर में जो आपने चीजें गुजारी होंगी उसमें से कोई एक चीज ऐसी होगी जो हाईलाइटेड उस जगह पे मौजूद होगी। बाकी स्पोर्ट्स का मैं दिलदादा रहा हूँ, क्रिकेट बहुत खेली है, देखी है, हॉकी का मैं बहुत अच्छा प्लेयर रहा, मतलब आप ये कह लीजिए कि कॉलेज कलर होल्डर हूँ। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो जिंदगी में जाहिर है चलती रही हैं। न्यूज, दुनिया के जो मामलात हैं इनको लुक आफ्टर करना, अखबारात पढ़ना, ये वो एक रेगुलर हैबिट्स है। और आजकल मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ टाइम नहीं है तो यानी कोई किताब पढ़ने का या वो, तो कम से कम कोई 2-4 अखबारात के 2-3 कॉलमिस्ट जो हैं, जो जाहिर है पॉलिटिक्स नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो जर्नल लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक, उनको पढ़िए। वो आपको पूरी दुनिया से आगाही दे देते हैं। उनके कॉलम्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया के इश्यूज को, और आप जाहिर है वेल इक्विप्ड रहते हैं इन चीजों को देखने के लिए। ओके सर, आपने जो बताया था you've also done radio? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रेडियो पाकिस्तान में काफी अच्छा काम किया एज ए, यानी आप कह लें कि न्यूज कास्टर भी, स्पोर्ट्स न्यूज में पढ़ा करता था। उसके अलावा एक प्रोग्राम होता था लाहौर 2 उसे कहते थे, रेडियो पाकिस्तान का। उसमें एक प्रोग्राम था बज़्म तलबा, वेडनेसडे की शाम आता था 6:03 से लेकर 30 मिनट तक, यानी तकरीबन 27 मिनट और 30 सेकंड का प्रोग्राम होता था। मैंने काफी अच्छा वो प्रोग्राम किया और वो मेरी जाहिर है कि यानी जिंदगी में मेरे बहुत काम आया, जहां मैं मुझे बोलना होता है तो वो मुझे आउटस्पोकन बोलने में वो मेरा कॉन्फिडेंस, वो चीजें मदद करती हैं। उस वक्त के जो लेजेंड्स थे, दानिश्वर थे, तलबा थे, असातिज़ा थे, उनको जब मैं अपने प्रोग्राम्स में बुलाता था तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उनके ऊपर उनकी बातों को सुन के उनसे सवालात उसी वक्त क्रिएट करना, फिर उनसे पूछना, फिर आगे की तरफ चलना, ये एक डिबेट थी जो बहुत अच्छी रहती। Sir, that is honestly exactly what we're doing right now. मतलब we've been trying. आपने हमसे पहले ही पॉडकास्ट की है।
और उसमें एक देखें, मैं आपने एक बात पूछी कि कभी कोई लम्हा ऐसा आया जिंदगी में जब यानी रिग्रेट होता है या स्टूडेंट से होता है, तो एक मेरी जिंदगी का एक बड़ा यूनिक वाकया है कि आई वाज सिलेक्टेड एज पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज कास्टर, उर्दू न्यूज के लिए मैं सिलेक्ट हुआ, और मैं चार्ज लेने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन पे इस्लामाबाद गया। आप यकीन कीजिएगा कि वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास मौजूद है, मैं वहां जाता हूं उसको चार्ज लेने के लिए, और सेम नाइट फारूक अहमद खान लुगारी बेनजीर भुट्टो की असेंबलियां तोड़ देता है, राइट। एंड आई वाज टोल्ड, और सुबह 9 बजे मुझे ज्वाइनिंग देनी है, तो रात के 2 बजे ये असेंबलियां टूटती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि आई कुड नॉट टेक चार्ज, राइट। द डे उस दिन मैं शायद अपने आप को बहुत ये फील कर रहा था कि मेरे पता नहीं कितना जुल्म मेरे साथ हो गया, बिकॉज आई वाज टोल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन कि जी आप चूंकि ये असेंबलियां टूट गई हैं, तो इस वक्त हमने कोई नई हायरिंग जो है, ये नई रिक्रूटमेंट नहीं हम कर रहे, नई चार्ज नहीं दे रहे, तो इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। वो दायरा मलिक मिराज खालिद प्राइम मिनिस्टर बने, अरशाद अहमद हक्कानी उस वक्त वजीर इत्तलात बन गए। उस दिन मैंने शायद जिंदगी में बहुत कुछ फीचर थी आप, और आपको एक मौका एक दिन पहले आपसे छीन लिया जाए, लेकिन आज इस वाक्य के तकरीबन आप ये समझता हूं कि मैं बहुत मुतमईन हूं कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बेहतरी के लिए कोई और रास्ता दिखाना था। तो इसलिए यही वाली बात कि जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा मौका आता है कि जो आप समझ रहे होते हैं कि शायद वो आखिरी मौका है, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए पता नहीं उससे कितने बेहतर मौके आपको प्रोवाइड करता है। मैं उस दिन शायद मैं बहुत यानी एक डाउन था, बड़ा मैंने फील किया था, बट आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम 100% सेटिस्फाइड विद माय प्रोफेशनल करियर एंड एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं guess वो आपकी तकदीर में नहीं था। यस सो ओके, तो सर बेसिकली हमने पूछा हमारे जो क्लासमेट्स थे और अच्छे खासे पाइसेस वाले स्टूडेंट्स से कि थोड़े से क्वेश्चंस भेजें आपके लिए, तो अच्छे खासे सवाल आए, कोई ने ऐसी वो मजाक वाले भेजे, तो हमने अच्छे वाले सवाल सारे निकाले हैं। तो पहला सवाल ये थोड़ा सा नॉन सीरियस होंगे फिर सीरियस होंगे, ठीक है कि सर व्हाई डिड यू कट योर मस्टैच? सॉरी आई कांट हियर यू। व्हाई डिड यू कट योर मस्टैच? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके सॉरी, आपके पास जो मस्टैच थी आपने वो क्यों काट दी? हाँ, दैट्स गुड क्वेश्चन। बस असल में आपको पता है कि मैं हेयर कलर करता था अपनी, मतलब वो जिसे क्या कहते हैं, मैं शायद बात भी हुई एक दफा, मैंने एक यानी अपना पार्टी में बताया भी कि मैं रेगुलरली डाई नहीं करता बालों को, ठीक है। तो महीने बाद या 3 हफ्ते बाद जब मैं कटिंग के लिए जाता था तो मेरा बार्बर मेरी कटिंग कर देता था, मूछें मेरी तकरीबन सफेद हो गई थी, ठीक है। तो वो एक अजीब सा वो बनता था। तो मेन रीजन शायद वही थी कि मतलब वो चूंकि सारी सफेद हो गई थी बीच में से, तो ये एक शायद रीजन था कि जिसकी वजह से मैंने की, अदरवाइज उसके पीछे कोई लव स्टोरी नहीं है। ओके नाइस। सही सर अगला क्वेश्चन सनान से आता है। सर सनान का क्वेश्चन है कि सर व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, और एक बंदा ये कैसे अचीव कर सकता है सक्सेस इन लाइफ? Success in life is satisfaction of your mind. Right. अगर आप ज़हनी तौर पे मुतमईन हैं, you are successful. याद रखिएगा, मेरे नजदीक अगर मैं जिंदगी में मुतमईन हूं तो मेरे लिए मैं शाम को अगर वो क्या कहते हैं ना अपनी मर्जी का इवनिंग गुजारता हूं, रात को मैं खाना खा के बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर कोई टैबलेट लिए मैं सो जाता हूं, तो मैं एक सेटिस्फाइड पर्सन हूं। तो मेरे लिए जिंदगी की ये सबसे बड़ी कामयाबी, और मैं मुतमईन हूं। Right, sir. Nice, very nice. Okay, so the next question is, ये अब स्कूल वाले बच्चों ने पूछा, ये मेरा सवाल नहीं है। तो वो कहते हैं कि why is the school so strict on mobile phone policies and other stuff? रियान बिल्कुल ठीक है आपकी बात। असल में पहले भी ये डिबेट हमारी होती रही मुख्तलिफ जगहों पे। असल में मोबाइल को लाना, मोबाइल को रखना कोई इशू नहीं है। असल प्रॉब्लम क्या है जब इसका मिस यूज होता है। जी सर। मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने डिबेट की। देखिए सम टाइम इट हैपन कि जब मोबाइल लाए,
क्लास में टीचर 5 या 7 मिनट 10 मिनट लेट है, या आपका फ्री पीरियड है, उस पीरियड में आपकी कोई क्लास नहीं है, जब आप उसमें फुटबॉल खेलना शुरू कर देते थे या क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे विद इन क्लासरूम, और फिर आप उस गैजेट से, उस मोबाइल से वीडियो बनाते थे और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते थे। ये वो इशू होते हैं जो आफ्टर इफेक्ट जो जिनके बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, समझ गए ना? रेपुटेशन ये वो चीजें हैं। लेकिन मोबाइल रखने पे मैं कभी भी मैं माइंड नहीं करूंगा। मेरा हमेशा जो स्कूल की पॉलिसी है उससे मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि मिस यूज ऑफ मोबाइल इज रॉन्ग। और आपको पता है कि मैं हमेशा फैसिलिटेटर रहा हूँ कि मेरे पास एक बच्चा आता था, वो कहता था सर मैं बहुत दूर से आता हूँ या मैं टैक्सी पे आता हूँ, मुझे मोबाइल लाजमी कैरी करना है। तो मेरा जवाब क्या होता था कि बेटा मोबाइल मेरे पास रखवा दें, अंडर लॉक रखा हुआ है, छुट्टी के वक्त जाते हुए ले लीजिएगा। राइट, यही चीज होती थी। और मेरा ये होता था कि आप पीई टीचर के पास, सेक्रेटरी के पास या किसी और के पास रखवा दें, सो दैट कि उसका मिस यूज ना हो। मोबाइल रखना कोई इशू नहीं है, उसका मिस यूज जो है दैट इज क्वेश्चन मार्क। और वो जाहिर है, जब जो याद है आपको कि वो जो फुटबॉल खेलते हुए पोस्ट जब वो सोशल मीडिया पे चली गई, तो वो थिंक अबाउट इट, इंस्टीट्यूट के बारे में लोग क्या कहेंगे कि बच्चे क्लासरूम में फुटबॉल खेल रहे हैं। आपकी तो एक छोटी सी शराब है, लेकिन इमेज इंस्टीट्यूट का क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जी सर। राइट सर, ये अगला सवाल भी आई थिंक ये पाइसेस के स्टूडेंट से है। सर, आप कंपेयर करें पाइसेस को टू अदर स्कूल्स इन रियाद, मतलब हाउ डज पाइसेस कंपेयर टू अदर स्कूल्स इन रियाद? देखिए, पाइसेस में जाहिर है जो अपनी लिमिटेड फैसिलिटीज हैं उसमें वो अपने बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। यकीनी तौर पे देखिएगा कि आप जानते हैं कि पाइसेस में जितने भी कंपेरेबल इंस्टीट्यूट हैं रियाद के अंदर, उनके मुकाबले में ऑलमोस्ट हाफ से लेके 1/4 फीस पाइसेस चार्ज करता है। राइट, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से आप बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग द बेस्ट। इज इट? हाँ, हमारे पास फैसिलिटीज कम है, हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, प्रॉपर लैब्स हमारे पास उस तरह से नहीं है, प्रॉपर बिल्डिंग जो है कैंपस की हमारी तमीज़शुदा नहीं है, और यकीनी तौर पे और बहुत सारी चीजें हैं जो जहां हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते। लेकिन जाहिर है कि मुझे इस बात पे फख्र है कि पाइसेस जो है वो स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग भी कर रहा है, उनके अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा भी पैदा कर रहा है, उनके अंदर दीन और इस्लाम की आगाही भी दे रहा है। आप अगर किसी भी और इंस्टीट्यूट से राब्ता कायम करें, उनके बच्चों को देखें, आपको लैकिंग मिलेगी कि वो बच्चे शायद पाकिस्तानियत से वाकिफ भी नहीं है। ठीक है, उन्हें पाकिस्तान सेलिब्रेशन का नहीं पता, मजहब, इस्लाम, दीन, इनके हवाले से उनके थॉट्स उस तरह से नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पाइसेस के प्लेटफॉर्म से मिलते रहे। जहां तक उर्दू डिबेट्स हैं, कुरान इंग्लिश डिबेट्स हैं, कुरान रेसिटेशन कंपटीशन है, और गाहे बगाहे जो स्कूल में पाइसेस के जो नेशनल डेज हैं पाकिस्तान समेत सऊदी अरेबिया के जो सेलिब्रेशंस होती हैं, वो यकीनन बाकी स्कूलों में लैकिंग है। राइट, लेकिन अल्टीमेटली हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो यकीनी तौर पे बाकी स्कूलों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद उतनी नहीं है। हमारे पास एक आइडियल लाइब्रेरी नहीं है। राइट, हमारे पास बहुत अच्छी ग्राउंड की फैसिलिटीज नहीं है। ठीक, और यकीनी तौर पे ये वो चीजें हैं जो अगर कंपेयर करें तो हमें कुछ कमी महसूस होती है। लेकिन जहां तक मैं मुतमईन हूं कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग भी करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करते हैं, एकेडमिकली भी उनको असिस्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चीजें हैं जो हमारा एक प्लस पॉइंट है एज कंपेयर टू रियाद के बाकी इंस्टीट्यूट से। Sir, I'll say this, मैं whenever anyone, अगर कोई भी कभी मुझसे पूछता था आप किधर आते हो पाइसेस, तो मैं I've never said it's a bad school. Like जो बंदे का अपना स्कूल होता है, you obviously want it to be good, and I'll be honest, Pisces was one of the best schools, to be honest, in terms of teaching. I always love the teachers. आप देखेंगे, आपको obviously पता है कि all the teachers are very interactive और वो care करते हैं कि student अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा. I've seen this with every teacher. और like एक ये बिल्कुल they take time out of their like अपना personal time से वो time निकालते हैं कि बेटा अगर कोई मसला है आ जाए, they spend their periods हमें समझाने के लिए अगर हम कोई गलत हरकतें करें, जैसे आपने किए हुए हैं, सर शकील ने किया हुआ है, सर मोइज ने किया हुआ है, all of us, all of you people really cared about us. This is like it made us feel much different than any other school. But okay, तो अब एक और हमारे बैच जो मेरी क्लास के बच्चे थे उन्हें पूछा,
हमारी क्लास के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं, और आई थिंक वो ये भी पूछते हैं कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर क्लास, बिकॉज़ आई फील लाइक यू वर आइदर मोर अटैच्ड टू आवर क्लास और मे बी आवर बैच, आपको पता होगा तो यस। रेहान बिल्कुल ठीक है, आपका बैच माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मेरी बड़ी अच्छी एसोसिएशन इस बैच के साथ रही। मैं माजी में भी बाज़ क्लासें ऐसी हैं जो ग्रेड 7 से लेके 8 तक मैंने पढ़ाई। मेरे लिए मतलब अगर मैं एक यानी वो ड्रीम बैच की बात करूं तो वो जो वासिफ सफदर वगैरह का बैच था जिसको मैं ग्रेड 7 से लेके 8 तक पढ़ाया, एसोसिएशन थी। आप लोगों के बैच के साथ भी मेरी बहुत क्लोज एसोसिएशन थी और बड़ी मतलब एक हमारे दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड फील करता हूँ इस बात पे कि इस 18 स्टूडेंट के बैच में जो मैथमेटिक्स लिया करते थे उनमें माशाल्लाह 6 नस्ट में बैठे हैं, राइट, लम्स में हैं, इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं। तो ये वो अचीवमेंट है जो जिनको मैं समझता हूँ कि अगर एक बच्चा एक वेल नोन यूनिवर्सिटी में पहुंचा है और उसके साथ साथ उसकी जो करेक्टर बिल्ड हुआ है प्लस उसकी प्रोफेशनली वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हो गया, वो उसकी एक सक्सेस है। और यकीनी तौर पे आपके बैच में बड़े बड़े ग्रेट नेम है, मतलब जाहिर है अभी आपने सनान की बात की है, ख्वाजा रियाज था, रियान है, और माशाल्लाह सरमद सईद चिश्ती है, वो मोमिन है। मतलब मैं एक मतलब सारे शायद 18 के 18 नाम मुझे अब पूरे मेरे लिए लेना मुमकिन नहीं, लेकिन ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज 18 स्टूडेंट मेरे लिए इंतहाई एहतराम है इन सब के लिए, और मैंने इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और आई हैव अर्नड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू पीपल एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज माई सेटिस्फेक्शन कि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत ही एहतराम मिला। तो इसीलिए आउट ऑफ द वे हर जगह पे हर जहां पे आपको कोई फैसिलिटी या चीज की जरूरत पड़ी है, आउट ऑफ द टाइम भी कभी ये चीज सोची नहीं है और आपके लिए हमेशा खड़े रहे। Yes, sir. Thank you very much. Honestly. Definitely. Sir, what do you think of people that go to uni without doing A levels? ये अरीब तारिक ने पूछा है. I don't know अगर आपको अरीब तारिक याद होंगे. उन्होंने ये पूछा मुझे था. याद है अरीब तारिक मुझे अच्छी तरह याद है। उसमें रेहान बेटा बात ये है कि असल में इसमें छोटी सी एक मसला ये है कि अगर तो आपने इंटरनेशनली मूव करना है, इंटरनेशनली ट्रेवल करना है, तो फिर विदाउट ए लेवल कंप्लीशन आप कहीं भी जाएंगे कोई इशू नहीं है, राइट। क्योंकि आपको ये पता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ए लेवल का इम्तिहान देने के लिए ओ लेवल करना जरूरी नहीं है, राइट। समझते हैं ना कि आप डायरेक्ट ए लेवल का इम्तिहान दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप एफएससी का इम्तिहान नहीं दे सकते जब तक आपने मैट्रिक का इम्तिहान ना दिया हो, या इवन एफएससी का इम्तिहान नहीं दे सकते जब ओ लेवल की इक्विवेलेंस आप ना लाए हो। पाकिस्तान में जब जो एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन है, वो आपको जब इक्विवेलेंस प्रोवाइड करता है ग्रेजुएशन के या आपको प्रोफेशनल डिग्री के, अगर एक बच्चे ने इंटरमीडिएट लेवल जिसको हम ए लेवल कहते हैं अपने सिस्टम के अंदर अगर वो नहीं किया हुआ, तो प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में आती है कि वो बच्चा पाकिस्तान में जब जॉब के लिए आएगा तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री उसकी ऑथोराइज नहीं होगी बाय एचईसी, राइट। अदरवाइज अगर आप पूरी दुनिया में कहीं मूव करना चाहते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि यू हैव नॉट डन द इंटरमीडिएट लेवल, दैट इज ए लेवल, एंड यू हैव डन आफ्टर ओ लेवल, आपने वो मतलब आप कह लीजिए कि डायरेक्टली ग्रेजुएशन ऑप्ट कर दी, तो वहां नहीं कोई इशू बनता। पाकिस्तान के सिस्टम की असल में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि जहां पे बच्चा जब इंटरमीडिएट या ए लेवल के बगैर आएगा तो उसको एचईसी जो है उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री को ऑथोराइज नहीं करेगी। Okay. Yes, sir. Well, जी सर, ये आखिरी स्टूडेंट ने स्पेसिफिकली कहा था कि प्लीज कीप मी अनोनिमस, तो सर ये सवाल थोड़ा सेंसिटिव सा है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं, उसे कहें परेशान ना हो, आई विल नॉट से एनीथिंग टू हिम। जी सर क्वेश्चन उसका ये है, मतलब उसने बड़े जज्बात से पूछा है क्वेश्चन कि सर व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज फॉर अ पर्सन टू गेट मैरिड? सर उसका ये क्वेश्चन है। That's good, very good. कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी ओ लेवल के बाद भी शादी हो जानी चाहिए। स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ओ लेवल के बाद ही शादी हो जानी चाहिए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद भी 4-5 साल की सर्विस करने के बाद सीरियस होना पड़ेगा, राइट। तो अक्सर और ध्यान बेटा एक बात याद रखिएगा, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं,
अच्छी एजुकेशन आप ले चुके हैं, उसके बाद आप अपने अगर कदमों पे खड़े हैं, तो आपके लिए ये स्टेप लेना जिंदगी का बहुत कामयाबी की तरफ ले जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि अश्तर जो है एमबीबीएस के 3rd ईयर में पढ़ रहा है, अभी उसकी 2 साल की क्वालिफिकेशन बाकी है। अब्बा सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं और वो शादी कर ले, और बेगम साहबा ये रिक्वेस्ट करें कि आज मुझे आउटिंग पे जाना है और फलां जगह डिनर करना है, तो अश्तर साहब रूटीन में तो अब्बा से मांगते हैं पैसे, और उस दिन जब जाके कहें कि आपकी बहू को खाना खिलाना है, आप पैसे दें, और अब्बा ने अगर जवाब नहीं दिया, तो हाउ इट विल बी एम्बैरेसिंग, हाँ राइट? जी, तो हाँ ये है कि सबसे पहले फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग हो, फैमिली अगर आपको support कर रही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, तो ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ओ लेवल के बाद शादी हो जानी चाहिए। ये अच्छा उत्तर है Nice. सर। Okay, sir. Honestly, sir, it was आपके साथ बात करने का honestly like it was very amazing talking to you. It's like Felt talking like to a an lecture. elder. अच्छा। It was like talking to an elder और आपसे like honestly बहुत कुछ हमने सीखा. Thank you so much for Thank you, sir. accepting Bye. our request for even coming. Jazakallah khair. It was amazing. And I just have like एक आखिरी सवाल है. What are your goals for the future? And is there anything you want to accomplish that is left, or are you satisfied? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मैं सबसे पहले तो आप लोगों का ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं गुफ्तगू कर सकूँ। यकीनी तौर पे आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपके जो पुराने फेलोज हैं, पाइसेस के स्टूडेंट हैं, वो यकीनी तौर पे सुनेंगे, महजूज भी होंगे। शायद उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतरी के लिए उनकी तरफ हो सकती हैं। और माशाल्लाह आप दोनों एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। मेरे लिए हमेशा आपका एहतराम है और मेरी दुआएं हमेशा आपके लिए। अल्लाह ताला आपको कदम कदम कामयाबी नसीब करे। और आपको क्या कहते हैं ना, जो अश्तर ने सवाल किया कि जल्द से जल्द शादियां भी हों और माशाल्लाह तो अगले स्टेप भी चले, सारा कुछ कामयाबियों से मिले। बाकी जहां तक मेरी जिंदगी के गोल्स का ताल्लुक है, हमेशा याद रखिएगा, तो जिसे क्या कहते हैं ना, हदीस के अल्फाज हैं कि इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, ठीक है। एक तो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं आखिरी सांस चल रही है, मैं इसको पढ़ता रहूं, जो कुछ मैं हासिल करता हूँ वो मेरे इल्म में का हिस्सा बनता रहे और मैं उसको आगे बांटता रहूं। ये मेरा जिंदगी का गोल है। दूसरी बात, यकीनी तौर पे कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में 60 साल की एज में रिटायरमेंट है, तो मुझे एक प्लान ये है, एक सोच ये है, या मेरा गोल ये है कि अगर मैं खुशी से अपने फारिग होकर रिटायर होकर जाऊं, तो मुझे जॉब ना करनी पड़े और मैं कोई तहकीकी और तख्लीकी काम जो है वो आइंदा आने वाले आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए कर सकूं। इतनी अफोर्डेबिलिटी मेरे पास मौजूद हो कि मैं वो पॉजिटिव काम कर सकूं, कुछ चैरिटी का काम कर सकूं। ये मेरे जिंदगी के यानी मेरा अजीम एक मतलब मकसद है कि मैं सोचता हूं कि मैं इन चीजों को कामयाबी से हासिल कर सकूं। और अगर आप वाइंड अप कर रहे हैं, तो मैं असल में अपने एक टीचर को ट्रिब्यूट भी करना चाहूंगा और उनके अल्फाज को दोहराना भी चाहूंगा। प्रोफेसर शेख रफीक अहमद, पाकिस्तान स्टडी हिस्ट्री का एक अजीम नाम, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से ताल्लुक, माशाल्लाह रिटायर हो चुके हैं। वो शख्स आज भी मुझे याद आते हैं, उनका एहतराम मेरे लिए आज भी मौजूद है। जब उन्होंने मुझे क्लास में आखिरी एफएससी की क्लास में पाकिस्तान स्टडी का जब उन्होंने पढ़ाया, तो उनका एक थॉट थी, उनकी एक वर्डिंग थी जो मैं शेयर करना चाहूंगा और उन्हीं के अल्फाज में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रोफेसर शेख रफीक अहमद साहब ने फरमाया कि बेटा, मेरा और आपका ताल्लुक तालिब इल्म और उस्ताद का है और ये यकीनन ताल्लुक जिंदगी भर कायम रहेगा। लेकिन जाहिरी तौर पे आज एफएससी की क्लास का आखिरी दिन है, ये हमारा डायरेक्ट राब्ता खत्म होने जा रहा है। उन्होंने हमें दुआएं दी और उसके साथ ही वॉज द ग्रेट मैन। उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग दीज 2 years जो मैंने आपको पढ़ाया, इस दौरान कभी गलती हो गई हो, इरादतन या गैर इरादतन, या मेरे किसी जेस्चर से आपने कुछ गलत फील किया हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये उनकी अजमत थी कि एक उस्ताद होने के बावजूद वो क्लास से इस तरह की बात कर रहे थे। दूसरा जो उन्होंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको कुछ अरसा पढ़ाया एज ए टीचर, मैं आपके बाप की जगह हूं जी। अगर आपको जिंदगी में कभी किसी जगह ये पता चले कि शेख रफीक मर गया है, तो कोशिश कीजिएगा मेरे जनाजे में शामिल हों, और अगर जनाजे में शामिल ना हो सकें तो कोशिश कीजिएगा कि मेरी कब्र पे आके
फातिहा पढ़ दीजिएगा। और अगर ऐसा भी ना हो तो आप जहां खड़े हो वहीं मेरे लिए खड़े होके सूरत फातिहा और 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ दीजिएगा। तो मैं अपने उस अजीम उस्ताद को की वसासत से यही पैगाम आप सब लोगों को देना चाहता हूं कि कभी जिंदगी में जब आपको मालूम हो नईम अख्तर मर गया है, कोशिश कीजिएगा मेरे जनाजे में शामिल हों। अगर ऐसा ना कर सकें तो कोशिश कीजिएगा मेरी कब्र पे आके फातिहा पढ़ दीजिएगा। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो जो जहां जिस जगह जिंदगी में आप मौजूद हो, मुझे एक दफा सूरत फातिहा और कुल हुवल्लाह 3 मरतबा पढ़ के जरूर बख्शिएगा। यकीनन अगली जिंदगी हमारी जिंदगी का हासिल है जो एवर लॉस्टिंग है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं अपने अजीम उस्ताद को ट्रिब्यूट करते हुए अपनी जात के लिए आपसे दरखास्त गुजार। Amazing words, sir. Honestly, वाकई में सर, honestly amazing words. And we will always remember you, sir. आपने हमारे डेफिनेटली, थैंक यू, always helped us. इवन इन लाइफ एंड डेथ। Inshallah. राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Well, sir, it was honestly amazing talking to you and जी। having this podcast with you. Please do take care and have a good day. Inshallah. Yes, थैंक यू Allah वेरी Hafiz. मच। Allah Hafiz. Jazakallah.